बेस्ट पीडियाट्रिशियन दरअसल माँ होती है, लेकिन माँ का ख्याल कौन रखेगा, महिलाओं का ख्याल कौन रखेगा, उसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमने तैयार किया है अपना नेक्स्ट पैनल डिस्कशन, विच इज़ एडवांसिंग वुमेन्स हेल्थ, अ वाइटल इम्पेरेटिव ऑफ आवर टाइम। महिलाओं से संबंधित जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उन पर चर्चा करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट को, डॉक्टर वंदना सिंगला, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पारस हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम फोर्टिस मोहाली। और इस सेशन को मॉडरेट करेंगी एबीपी लाइव एंकर चाहत जैन। कैन आई रिक्वेस्ट ऑल थ्री ऑफ यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज एज वी बिगिन quickly with our panel discussion on advancing women's health, a vital imperative of our time. With that, Chahat, I'm going to hand it over to you. So this is a woman-led panel, I would rather say. Both doctors are women, the moderator is also a woman. Doctors, you both are gynecologists. मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ, जब महिलाएं आपके पास आती हैं तो कोई ऐसा पर्टिकुलर एक सवाल है जो बहुत कॉमन आपने ट्रेंड में देखा है, सबसे मतलब उनका जो कॉमन क्वेश्चन होता है, मे बी इलनेस, मे बी डाइट, वो क्या होता है? I'll start with you, Dr. Swapna. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Swapna Mishra. I'm Director, Gynae and Robotic Surgeon at Fortis Hospital, Mohali. So the most common question जो मैंने हमेशा face किया है, any woman who comes to my OPD is menstrual problem. If they're coming early, if they're coming late, if the flow is less, flow is for a day, flow is for 5 days. I think the only thing which bothers and which एक lady दूसरे lady से discuss करती है is उसकी menstrual cycle. Because ये हमारे हमको बताया जाता है the moment एक लड़की के period शुरू होते हैं कि अगर periods regular आते हैं, periods का flow सही रहता है, इसका मतलब वो healthy है. So I think most common question is always उसकी menstrual cycle से लेकर. Dr. Vandana. I'm Dr. Vandana, Paras Hospital, Panchkula. As rightly said by Dr. Swapna, कि सबसे common problem जो ladies लेकर आती हैं, that is the menstrual problem. But I will categorize into multiple layers. It varies according to the age also. Adolescent हैं या young females हैं, like in their 20s or 30s, they usually come with the problem of menstrual irregularities, कि periods नहीं आ रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. Then the second problem which comes is the late 20s to 30s is the infertility problem. कि pregnancy नहीं हो रही है, recurrent miscarriages हो रहे हैं. And then the later the stage comes is कि they start worrying about their well-being. कि हम अपनी well-being कैसे कर सकते हैं, हम cancer preventions कैसे कर सकते हैं. And lastly, the menopausal stage. Again, here is the main stage कि where the ladies are concerned more about their mental health, physical health, and lastly the cancer changes which they can avoid. आपने बहुत सारे टॉपिक्स जो थे, जो मेरे आने वाले सवाल थे, वो सब एक जवाब में कर दिए. मैं यहाँ पे डॉक्टर वंदना आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने बोला कि अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, लोगों को अर्ली मेंस्ट्रुएशन, ये बहुत बड़ा इशू है. आजकल हम देख रहे हैं, बीट ऑन सोशल मीडिया, बहुत अवेयरनेस चाहिए इस चीज़ की. यंग गर्ल्स एज यंग एज 8 और 12 दे आर गेटिंग देयर मेंस्ट्रुएशंस. ये ऐसे कैसे हो रहा है? लाइक should we blame it on the lifestyle? Should we blame it on their diet? ऐसा क्यों हो रहा है? And if it is happening, how can we medically deal with it? See, this is very rightly said कि age of जो menstruation है, या age of menarche, पहले earlier we used to say कि 11-12 years was the age of the menarche, which now has come down to 8. कि after 8, if the age of if any lady is menstruating, we term it normal. पहले इस चीज़ को हम अर्ली मेनार्की या अर्ली प्यूबर्टी का हम बताते थे. इसके रीजंस बहुत सारे हैं. वन इज़ द लाइफस्टाइल, और वेट गेन, एनवायरनमेंट इज मोस्टली पुटिंग अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन सच अर्ली मेनार्की. डॉक्टर, ये सेम इशू है और इसकी वजह से यंग गर्ल्स को उतनी छोटी उम्र में नहीं पता होता, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती. I think somewhere ये early menarche के लिए we as parents are responsible. Okay. See, menarche क्यों? Early hormones, the estrogen level is becoming higher. Why? Because fat percentage is increasing. Why? The girls are not exercising. They are not playing out. Right. वही what Dr. Sunil and rest of the panelists told about the childhood obesity. So when the obesity rises, stress level बढ़ रहा है, isolation बढ़ रही है बच्चों में,
the more obesity becomes, आपका estrogen starts, your body starts, the hormone, the whole axis starts getting activated early. तो definitely इन लड़कियों में मिनार्की जल्दी हो रहा है. So of course the upbringing of a child, दो environmental कुछ हैं genetic factors, कुछ आप अपने parents से लेकर आते हो. Mother को early हुआ है तो बेटी को भी होगा. But कुछ environmental factor which can be controlled. A child who's tuned to आउटडोर एक्टिविटी, जो एक्सरसाइज करती है, पेरेंट्स ने आदत डाली है आउटडोर एक्टिविटी के लिए, एंड हु हैज़ कंट्रोल्ड द बॉडी वेट, द पेरेंट्स चेक द डाइट कि हेल्दी ईटिंग है कि नहीं, दे यूजुअली हैव अ मिनार्की एट अ राइट एज, विच यू से समवेयर आफ्टर द एज ऑफ 10 years. बट ऑफकोर्स ये सारे फैक्टर्स प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्लस मिलावट खानों में, द इंक्रीज लेवल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन आवर फूड, इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग आवर हार्मोनल इम्बैलेंस. माना हो रहा है, इसको डील कैसे करना है? कैन वी डू समथिंग फॉर इट? वी कांट से कि हम इसे बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं, बट देयर कुड बी अ मेडिकल प्रोसेस, राइट? या द फर्स्ट थिंग आई सेड कि ये जो आदत डालनी है आउटडोर एक्टिविटी की, ये जो घर में बच्चों को घर से बाहर भेजना, बंद ना रह के जैसे स्मार्टफोन्स, बचपन में हमारे लैपटॉप्स पेरेंट्स या- बोलते थे स्कूल से आए रेस्ट किया अब जाओ खेलने, Right. 2 घंटा खेल के आओ. वो जो आदतें, आई नो पेरेंट्स आर मोर वरिड आजकल, दैट सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है, बट गेटिंग कोई लेवल वेयर दे कैन बी एक्सपोज्ड टू एन एक्सरसाइजेस एट अ वेरी अर्ली एज, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स इनमें डेफिनेटली प्रिवेंट करेगा. डॉक्टर वंदना, मैं इसी से रिगार्डिंग अगला सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि अब आपने बोला कि ठीक है मेंस्ट्रुएशन अर्ली स्टार्ट हो रही है, दैट डेफिनेटली मीन्स के मेनोपॉज भी फिर अर्ली होगा, बिकॉज साइकिल अब आपकी छोटी हो गई है, साइकिल भी अब आपकी आगे ही शिफ्ट करेगी. अर्ली मेनोपॉज भी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से वुमेन को मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट. लाइक वुमेन इन अर्ली 40s, मिड 40s आर गेटिंग मेनोपॉज, जो पहले मिड 50s और मे बी लेट 50s में होते थे. Why is that happening? Menopause is always, we could say कि after the age of the 45 to 55 is the age of the menopause. But we are seeing the women around the age of the 40 who are getting menopause. One is the genetic trend कि आपके मदर को, आपकी सिस्टर को, आपके मदर की सिस्टर को जो है उनको menopause कब अटेन हुआ. Secondly, about and surgical issues. अब जैसे कि ओवरीज, अगर हमारी कोई ओवेरियन सर्जरी हो रही है, we are losing our cells, ovarian cells, that also contribute to the early menopause. That is another. Doctor? See, one thing is early menarche, early menopause. Second thing again I say weight management. Obesity अगर आप देखोगे, obesity जो household activity जो women के लिए पहले था कि घर के काम करने हैं, आजकल वो काम factors ख़त्म हो गए हैं, obesity बढ़ रहा है. As obesity starts rising, again estrogen level starts rising. So आपको जो changes जो perimenopause में होते हैं, जो 50 साल के बाद होने थे, Right. वो जल्दी होने शुरू हो जाते हैं. नेचुरली जल्दी होने शुरू हो जाते हैं, तो 40 के बाद जो आप एक्सपेक्ट करते हो, नाउ एज यंग एज 35, द गर्ल स्टार्ट प्लानिंग की शादी हुई है एट द एज ऑफ 35 एंड दे वांट टू प्लान अ बेबी, एंड हम उनका ब्लड टेस्ट कराते AMH लेवल, वी फाइंड द एग वैल्यूज आर एज लो एज अ वुमेन हु इज नियरिंग मेनोपॉज. Oh. That is the thing, the whole scenario is changing because of the lifestyle change, because of dietary modification, the stress. These all factors are playing बहुत important role in एक lady का early menopause की तरफ. अर्ली मेनोपॉज की जब हम बात करें तो इसको हम किसी भी तरह से वी कैन नॉट डिले इट मेडिकली. मेडिकली नो, आप डिले नहीं कर सकते, बट आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से Change इसको कर सकते हो. थोड़ा सा मॉडिफाई डेफिनेटली कर सकते हो. जीन्स आप चेंज नहीं कर सकते, दवाइयों से चेंज नहीं कर सकते, बट येस अपने खाने पीने, एक्टिविटी एंड स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो तो कुछ हद तक इन चीज़ों को आप पार कर सकते हो. You spoke about blood test. Infertility again is a very common thing जो 10 में से आज के समय में 4 या 5 महिला में देखी जा रही है. In big cities, almost every second woman is on IVF. Why is that happening? Again, I think lifestyle would be one of your answers. Yeah, but lifestyle is one of the, I will say कि the main answer for the problem is. Second is getting the delayed marriages. Well, आजकल क्या ट्रेंड देख रहे हैं कि because the girls are quite career oriented, they want to settle down in their lives. So late marriages, late childbearing. Again, next is the obesity, stress, addictions like smoking, alcohol. All these things are contributing to the infertility. Infertility. Yes. Doctor? एक और फैक्टर है, एज कपल स्टार्ट वर्किंग एंड हमारे IT इंडस्ट्रीज़ है,
some are working in the morning, some are working at night. So most of the time when you talk to the couple, say they have to be together, right? Right. One is working in the morning, one is working at night, or one is working at some other place. So naturally by the time they think कि हम करियर में इस पड़ाव तक पहुँचेंगे, अब प्लान करेंगे प्रेगनेंसी, तब तक उम्र ही निकल जाती है, बिकॉज वो पड़ाव तक पहुँचने में इट स्टार्ट्स एट द ये एज ऑफ 30. उम्र क्या है डॉक्टर? मतलब See. people say that this is the right age, that is the right age, but is there actual right age? Yeah, there is a right age. So biological clock, if Yeah. you say 35 years के बाद the quality of egg starts going down, even the Okay. quality of sperm starts going down. So the planning should happen at the time when the egg और sperm की जो quality बहुत अच्छी है. Problem is that women career definitely शादी करते हो आफ्टर द एज ऑफ 30 एंड बाय द टाइम आप सोचते हो कि हाँ 35 तक नाउ हम एक लेवल तक पहुंच गए, हमारा अब हम थोड़ा सा एक प्लान कर सकते हैं. देन यू सडनली रियलाइज स्पर्म काउंट इज लो, द एग काउंट इज लो, एंड लॉट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस विच हैज हैपेंड इन द बॉडी. जो यूथफुलनेस बॉडी के अंदर थी एट द एज ऑफ 30 हैज़ गॉन डाउन. राइट. एग क्वालिटी हैज़ गॉन डाउन, एंडोमेट्रियोसिस बढ़ जाता है, फाइब्रॉइड्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड देन यू आर डीलिंग विद और सारे कॉम्प्लिकेशन जो उस उम्र में नहीं होने चाहिए थे. कैन वी फॉलो अ गुड डाइट से कैन वी मेक इट बेटर? आई थिंक हमें अपना बायोलॉजिकल क्लॉक भी समझना चाहिए. आई थिंक बिफोर द एज ऑफ 35 अ वुमेन अगर प्लान कर ले वुड बी अ बेटर चॉइस रादर दैन सोचो कि चलो मैं ये डाइट कर लूँ, ये कर लूँ एंड गेट मैरिड लेट एंड हैव. आई थिंक गॉड ने जो कुछ बनाया हुआ है, अगर आपने बेबी करना है राइट. तो प्लान इट एट द राइट एज, नहीं करना तो वो आपकी चॉइस ही है. दैट्स राइट. आपने ब्लड टेस्ट का भी बताया था. आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो ऐसा सोचते होंगे, बिकॉज इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, क्या ऐसा कोई ब्लड टेस्ट है विच कैन टेल यू अबाउट योर लाइक हाउ फर्टाइल यू आर, अबाउट योर फर्टिलिटी? इज देयर अ ब्लड टेस्ट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ योर पीरियड्स आर रेगुलर, अगर वो टाइम से आते हैं, डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग गुड विथ यू. ऑफ कोर्स हम कुछ ब्लड टेस्ट जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनमें फीमेल में एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, एमएच लेवल्स कराते हैं, देखने के लिए कि उनके एक की क्वालिटी कैसी है, वो किस लेवल पे हैं, कोई ज़्यादा लो तो नहीं है. एंड वी आर सरप्राइज्ड कि हमें वो वैल्यूज़ मिलते हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते एट द एज ऑफ 30 ईयर्स. सो एंड येस, अगर ये वुमेन जो मे बी ऑन द ओबीज साइड है या उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है लाइफ में, अगर थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करती है, हम एएमएच वैल्यू में भी मॉडिफिकेशन देखते हैं. सो डेफिनेटली एक्सरसाइज, डाइट, डिक्रीजिंग स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है. बट अगेन द टेक होम इज़ दैट प्लान प्रेगनेंसी एट द राइट एज, नॉट एट द एज कि करियर में एक लेवल तक पहुँच गए एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग एंड देन यू लैंड अप विद प्रॉब्लम्स. राइट. डॉक्टर वंदना, PCOD, PCOS, again a very common problem in young girls in India. How did this just happen? Every third girl is either having PCOS or PCOD. See, PCOD and PCOS are almost the similar with a few differences. Right. When we say PCOS, it is the further deterioration of the PCOD. Okay. When along with the features of the PCOD, when we have the endocrine disorders like diabetes, hypertension, infertility, then we say the patient has become the patient of polycystic ovarian syndrome. So the reason for this is again unknown, and mainly genetic and environmental factors are playing a big role. Again, stress levels, obesity, insulin resistance, ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारे पॉलीसिस्टिक ओवरीज को प्रमोट कर रहे हैं. डॉक्टर स्वप्ना, जैसे डॉक्टर ने बोला जेनेटिक है, मैंने पिछले कई सवालों में आप लोगों ने बोला जेनेटिक है, बट एज फार एज आई रिमेंबर हमारी पुरानी जनरेशन में ये सब नहीं था. तो ये जेनेटिक आ कहाँ से रहा है जब पहले था ही नहीं? तो मतलब आर वी द फर्स्ट जनरेशन दैट वी आर स्टार्टिंग विद दिस? लाइक हाउ इज इट जेनेटिक? सी, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है विद एनवायरमेंटल फैक्टर. हमारे पास जीन्स में बहुत कुछ होता है, राइट. पर वो जीन्स एक्सप्रेस कब करता है? अगर हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो एक्सप्रेस करता है. अब पीसीओडी पहले क्यों नहीं था, अब क्यों है? लेडीज वुड डू ऑल द वर्क, राइट. ठीक है, चाहे वो घर पे रहती थी पर घर के काम करती थी. अब है कि यू आर डूइंग अ डेस्क जॉब, ठीक है, एक्सरसाइजेस नहीं है, टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए, सो यू हैव एक्सेस टू जंक फूड. तो वही जीन्स में, डीएनए में जो हमारे पास वो पीसीओडी वाला जो जीन है
वो एक्सप्रेस आउट हो गया क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया फॉर इट टू गेट एक्सप्रेस. सो डेफिनेटली एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद पीसीओएस. इंसुलिन रेसिस्टेंस क्यों होता है? इंसुलिन रेसिस्टेंस का बेस्ट ट्रीटमेंट पीसीओएस का क्या है? डाइट एंड एक्सरसाइज. राइट. यू आस्क अ लेडी टू लूज 10 किलोस एंड पीसीओएस ऐसे गायब होता है. सो डेफिनेटली हमारा डाइट एंड एक्सरसाइज बहुत मैटर करता है कि हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो भी रहे हैं कि नहीं. बेसिकली हम इसे डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं. माई नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, इंडिया इज़ वन ऑफ, आई वुडंट से इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, बट अगेन बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं सी सेक्शन के, सिजेरियन बर्थ्स, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. वाई इज़ दैट? लाइक इज़ इट दैट पीपल आर ऑप्टिंग फॉर इट? वो महिलाएं खुद इच्छा प्रकट कर रही हैं या फिर हम उनको इस तरह का ईजी ऑप्शन दे रहे हैं? लाइक वाई इज़ इट? See, again, there are multiple factors in this. The cases of cesarean are rising. Yes. One thing is the girls today, their lives, because of their lifestyle, they are not able to bear the pain. So they are opting for the cesarean electively. And the other thing is they have unknown afraid in the mind कि मैं पेन कैसे टॉलरेट करूँगी, बेबी को कुछ हो ना जाए. ये ऐसे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. Next comes the reason. There are some absolute reasons for the for the cesareans also. अगर बेबी कमज़ोर है, मदर की मेडिकल कंडीशंस abnormal है, बेबी की fetal heart कम ज़्यादा हो रही है, placental problems हैं, they become the absolute indications for the cesarean section. But because the ladies हैं, obesity ज़्यादा है, baby weight बहुत ज़्यादा है, in those cases again the man, सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि fear in the mind of tolerating the labor pains, वो सबसे ज़्यादा है. डॉक्टर? ऑफ कोर्स व्हेन यू से अ नॉर्मल डिलीवरी मतलब नेचुरल प्रोसेस. Right. जब लेडी ओपन्स अप हर बॉडी टू डिलीवर अ बेबी, दैट्स राइट. to open up her body and let her pelvic muscles open up, she needs to exercise. You cannot be sitting on your chair the whole 9 months, being fed great खाना, माँ ने बोला, सास ने बोला, हस्बैंड ने खिलाया, Food myths, yeah. पूरे 9 महीने आपने कुछ नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई अपने बॉडी को एक्टिविटी नहीं दी कि आपका बॉडी उस टाइम पेन टॉलरेट कर सके, एंड देन यू सडनली एक्सपेक्ट कि अब नॉर्मल हो जाए और बिना पेन के हो जाए और सब कुछ हो जाए. ऐसा नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट क्यों आपने मैनेज करनी कि बच्चा ज़्यादा बड़ा ना हो. राइट. इंडियन लेडीज कैन डिलीवर अ नॉर्मल बेबी बिटवीन 2.5 to 3.5 kg. Right. अब बेबी आपका 4 किलो का, आप किस ढंग से पैदा करोगे? Right. 9 महीने आपने कुछ नहीं किया, नो एक्सरसाइजेस, नथिंग, घर के काम भी नहीं, बाहर के काम भी नहीं, खुद के ऊपर भी कुछ भी नहीं, कहाँ से नॉर्मल डिलीवरी होगी? सो दीज आर द फैक्टर्स. थर्ड थिंग इज दैट आर वी रेडी टू एक्सपेक्ट अ कॉम्प्लिकेशन? पुराने ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी पर फीटल मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा था. आर वी इन दैट एरा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9 months के पेन के बाद इज़ द लेडी रेडी टू एक्सेप्ट कि कोई बात नहीं, नॉर्मल तो हो गया, बच्चे में प्रॉब्लम आ गई? नो पेरेंट विल एक्सेप्ट इट. एंड इट्स रिस्की फॉर द मदर एज वेल, राइट? ऑफ कोर्स. सो there are a lot of factors which work together to make a lady go through a normal delivery. उसमें role of the family, the doctor and the environment and preparing the parents, preparing the daughter for a normal delivery is very very important. माई लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू डॉक्टर्स वुड बी, आपने बोला था कि जैसे एक लेट एज होती है, अर्ली एज होती है, आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं और मे बी इट कुड बी अ मिथ कि इफ़ यू कंसीव प्रॉबेबली आफ्टर 35, सो द चांसेस ऑफ हैविंग अ बेबी विद डाउन सिंड्रोम गोज मच हायर. इज दैट ट्रू और इज इट अ मिथ? सी एज द एज एडवांसेस जो हमारी ओवा की जो क्वालिटी है, जो एग की क्वालिटी है, वो डाउन होती है. बट देर एज द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी एडवांसिंग, देर आर टेक्निक्स टू वेयर वी कैन डिटेक्ट कि हमारे बेबी में कोई abnormality तो नहीं है. Right. देयर स्पेशल टेस्ट्स आर बीइंग अवेलेबल. इवन ये ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ आफ्टर द एज ऑफ द 35 ही डाउन्स या कोई abnormal बेबी के चांसेस हों. इवन द अर्लियर इट कैन हैपन बट द चांसेस डू इंक्रीज आफ्टर द एज ऑफ द 35. बट थ्रू द स्पेशलाइज टेस्ट एंड द अल्ट्रासाउंड, आजकल बहुत अच्छे अल्ट्रासाउंड एंड टेस्ट अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम ऐसे abnormal बेबीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन चेक ऑन टाइम. एग्जैक्टली. डॉक्टर? Yeah, the incidence of Down syndrome as the maternal age बढ़ता है, बढ़ जाता है. पर आज के दिन में ऐसा नहीं कि कोई 18 साल में प्रेग्नेंट हुई है और बेबी रखना चाहती है, मैरिड है, उसमें हम स्क्रीनिंग नहीं करते, ऐसा नहीं है. Screening is done on every woman because we do not want to give birth to a Down's baby.
सो अगर आप देखा जाए पिछले आई थिंक 18 सालों में वी हैवेंट गिवन बर्थ थ्रू एनी डाउन्स बेबी बिकॉज दैट इज अ मेंटल बर्डन एंड अ सोशल बर्डन ऑन एवरीवन. Right. So we do lot of screening definitely to see that the parents do not face the trauma of having a Downs baby at the time of delivery. So ये सारी screening 3rd 4th month में हो जाते Right. हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे में Downs है या नहीं है. But if someone wants to have it, it is their choice. Yeah, it is their choice. You can even have children at the age of 40 years. We have ladies who get pregnant for the first time at 42 who had lost all hopes and they give birth to normal child. But of course screening has to be done. Doctor, I think you wanted to say something. See, not only the Down syndrome, there are the other many problems which we can diagnose earlier through the screening tests. Like ma'am said, कि at the age of the 18, yeah, we are doing screening when the lady is pregnant. Any age group, No matter whatever the whatever age. age it is. And any medical condition the patient is having, like if there is some genetic disorders which are running in the families, those things can also be get tested during the pregnancy. That doesn't transmit to the child also. That's so good to know. Well, thank you so much, doctors, for such an insightful session. And I hope all the women here, आपके जितने भी most frequently asked questions रहते हैं internet पे, I hope कि वो सारे आपके दोनों doctor gynecologist से answer हो गए हो. Thank you so much for being here, doctors. Thank you. Thank you so much, doctors. Thank you so much, Chahat, for an insightful session. And of course, it was very engaging. But before you leave the stage, I'm going to invite Mr. Amit Singh, Government Digital Sales Head of ABP Network, to please join us here and felicitate our doctors for this wonderful discussion. It was concerning women's health, which is a vital imperative of our time, and there are so many concerns which we tried touching upon in this engaging session, and I do hope that you got all your answers. Can we have a round of applause for both the doctors here? Thank you so much, ma'am, for this session. Dr. Vandana Singla and Dr. Swapna Mishra, it was wonderful having both of you here with us for this session.